मेरा कैमरा चल रहा है नीतू? नहीं सर। मैंने वेबकैम, हाँ सर स्टार्ट हो गया। Broadcast has been started. Am I audible? Yes. Yes, Mahesh. Good afternoon, friends. My name is Mahesh Parmar, and I am a chartered accountant, and I am serving in our firm, Pradeep S. Jain and Associates, since 2015. Under the guidance of Pradeep Jain, sir, we have got this opportunity. We are honored to conduct this webinar, and we all are associated with Pradeep S. Jain and Associates firm. I hope you all are staying at home and utilizing the time in the best possible manner. Today, we all are here for discussing the procedure to generate e-invoice on the e-invoice trial portal. We are having CA Neetu Sukhwani, Chartered Accountant, for deliberating on this topic. She has been serving in our firm, Pradeep S. Jain and Associates, since 2012. Presently, she is involved in handling legal and litigation matters of our firm along with day-to-day compliance work in GST. She has also been recognized as a faculty member of GST by ICAI. She has also co-authored book titled A Comprehensive Guide to GST for Exporters, published by Bloomsbury Publishing India Private Limited. She is regular writer for renowned publications such as Sentex Publications Private Limited, Taxman Publications. Her articles have also been published on ICI Journal in various prominent websites such as taxindiaonline.com, taxman.com, clubindia.com, taxmanagement.com, and taxguru.com, etc. We have 10 minutes for answering any queries of our attendees. If you have any queries, you can post in this question and answer section appearing on your screen. Let us begin the webinar, and now I hand over the session to Chartered Accountant Neetu Sukhwani. Thank you, Mahesh, for your kind words. Very good evening to all of you. I hope you all are staying at home and making good utilization of this lockdown period. And our webinar is also an initiative in this regard in order to share our knowledge and to have a healthy discussion with our viewers. As I can see in the list of attendees, we have viewers from different parts of our country, and it's very appreciating for us. Since we are having users from various parts of the country, I'll prefer to use Hindi and English both, so that I'm able to target as much audience as possible. And by the end of this session, I hope that I'm able to provide you a brief overview and practical overview of this generation of e-invoice on the trial portal launched by CBIC. So let's begin with the presentation. I'll be sharing my screen so that you all are able to better understand what I'm trying to explain, because this webinar is totally on practical aspects of generation of e-invoice. And now I'll be sharing my screen. I hope I'm audible to all. Karthik, I hope my voice is not breaking. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay, fine. And my screen is visible to all? Yes, Neetu, it is visible.
Okay, so I'll begin with my presentation. Today I'll be speaking on e-invoicing under GST. So when GST law was introduced, we all know that it came with an objective of seamless flow of input tax credit and seamless flow of movement of goods as well. जीएसटी लॉ में ये बोला गया था कि जो पहले इंस्पेक्टर राज होता था, जैसे बहुत सारे फॉर्म्स वैट फॉर्म्स हमको सबमिट करने पड़ते थे और बहुत सारे मूवमेंट की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज थी उसको वो ये जीएसटी लॉ चाहता था कि वो सब खत्म होके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि जो एसएससीज हैं उनको बेनिफिट हो और वो मतलब कोई भी रास्ते में गुड्स का अनड्यू डिले नहीं हो उसके मूवमेंट में। इस वजह से जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया और इसके साथ ही एक न्यू कॉन्सेप्ट भी लाया गया ई वेबल सिस्टम का। ऑल्दो ये ई वेबल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड इट्स वर्किंग एफिशिएंटली नाउ, बट स्टिल जो इनवॉइस फेक इनवॉइसेस के केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। So in order to curb these cases of fake invoices, government has brought into a concept of e-invoicing and GST, which we will be discussing today in this session. So I'll be taking you to the overall practical overview of this trial version, which is available of GST portal. And before proceeding further, मैं पहले एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली ई इनवॉइसिंग क्या है। जीएसटी काउंसिल ने ई इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। Earlier, this e-invoicing concept was proposed to be introduced from 1st April 2020, but recently in the GST Council meeting, this implementation of this e-invoicing has been deferred, and now it will be implemented from October 2020. So, before proceeding on how to generate e-invoice and how to fix IRN and QR code on e-invoices, let us understand what is the need of e-invoicing. सबसे पहले हम बात करेंगे कि e-invoicing का मतलब इसका नीड क्यों है, इसका नीड क्यों फील किया गया। तो हम सभी को पता है कि हम जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो ई-इनवॉइसेस जनरेट करते हैं अपने अपने सॉफ्टवेयर से। किसी के पास टैली है तो किसी के पास कोई और सॉफ्टवेयर है, सैप है, वी हैव मेनी सॉफ्टवेयर्स। और ऐसा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी इनवॉइसेस एसएससीज जनरेट कर रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। हेलो कार्तिक, आई फील देयर इज सम डिस्टर्बेंस, कैन यू प्लीज म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स? हाँ, जस्ट मिनट। तो क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म जरूरी है एक इनवॉइस को स्टैंडर्डाइज करके उस पे क्यूआर कोड और आईआरएन इफेक्ट्स हो सके। सो जब ये ई इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट लाया गया तो देयर वर मेनी मिथ्स अबाउट इट कि व्हाट विल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू जनरेट ई इनवॉइस ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अगर ये माना जाए तो बहुत सारे दिमाग में थ्रेट्स आते हैं कि इससे क्या कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लूज हो जाएगा गवर्नमेंट पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट करने पे। तो ये जो मिथ्स हैं गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि दीज ऑल मिथ्स एंड द एसएससीज नीड नॉट टू वरी। ई इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ आपके इनवॉइस को ऑथेंटिकेट करता है बाय गिविंग अ क्यूआर कोड एंड आईआरएन टू इट। ई इनवॉइस अभी भी एसएससीज अपने अपने रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर से ही जनरेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एसएससीज को उस इनवॉइस को जो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से जनरेट किया है उसे ई इनवॉइस पोर्टल पे डालना पड़ेगा और ई इनवॉइस पोर्टल उसको उस पे आईआरएन और क्यूआर कोड फिक्स करके उसको डिजिटली साइन करके एसएससी को वापस दे देगा जिससे कि वो इनवॉइस एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और ऑथेंटिकेट हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सो इसलिए ई इनवॉइस की नीड मतलब फील की गई। अब हम अगर बेसिक्स में जाएंगे तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द की फीचर्स ऑफ ई इनवॉइसिंग कि ई इनवॉइस का मतलब क्या है और उसको ऐसा नहीं है कि उसको हमको सेंट्रल पोर्टल से जनरेट करना पड़ेगा। वी नीड टू जनरेट इट फ्रॉम आवर ओन अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर in our own format and we just need to fix IRN and QR code on it. Then मैं पूरे सेमिनार में I'll be using two important terms, IRN and QR code. IRN is invoice reference number
This is a unique number which is also known as hash algorithm. Just a second. The invoice number is a unique number which is also known as hash which is generated by the e-invoice system using a hash algorithm. ये जो IRN नंबर है ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपली एक 64 कैरेक्टर डिजिट है, यूनिक कैरेक्टर है जो कि हर इनवॉइस पे फिक्स करेगी गवर्नमेंट, और ये बहुत ही यूनिक होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे क्यूआर कोड जनरेट होगा. देन ये जो IRN नंबर होगा ये यूनिक होगा हर एक इनवॉइस के लिए, and it is also mandatory that every invoice which is being generated by us, it is unique for the entire financial year और entire GST period के लिए भी, because ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए एक प्री रिक्वेस्ट है कि अपनी जो इनवॉइस है वो यूनिक हो इन ऑल रिस्पेक्ट्स. तो जो IRN नंबर है वो भी यूनिक नंबर होगा जो उस इनवॉइस को असाइन किया जाएगा बाय ई इनवॉइस पोर्टल. नाउ कमिंग टू द क्यूआर कोड. क्यूआर कोड उस क्यूआर कोड में फॉलोइंग पैरामीटर्स होंगे. यू कैन सी माय प्रेजेंटेशन. आई हैव made the requirements in bullet form wherein And it your is hello. sorry, but Yes. ma'am, but your PDF is not visible, ma'am. It is not visible from now onwards, or it was not visible from starting only? Starting onwards, only the main desktop screen is visible. You have to select from the drop down list. Just a second. Now Yes, is it ma'am. visible? Now, yes, ma'am. Okay. Zoom a bit because it's okay. Okay, I'll do that. Can I minimize this control panel and other things? And Ha, can you ma'am. From and can I okay, I'll just do that. Is visible properly, yes, ma'am. or shall I zoom it more? Okay, now That's it. okay. Okay. Now the QR code, it will consist of following e-invoice parameters. It will consist of GSTN of supplier, GSTN of recipient, invoice number, date of generation of invoice, invoice value, which is and gross tax and taxable value, number of line items, which means that if suppose I'm dealing in more than one products and I'm selling it like product A, B, C, D in a one invoice, then all items would be the number of line items would be mentioned like the invoice is consisting of 4 products. Then HSN code of main item which is having the highest taxable value, which it will be mentioned on the QR code, and unique invoice reference number hash. In order to provide you more clarity, I'll just show you the sample e-invoice. This is the e-invoice, sample e-invoice, which is being released by the government in user manual. This code, I hope I'm able to point this. This code is QR code. It is similar to an image, and if we scan this code even through a mobile scanner, following test result would appear. See, after scanning this QR code, SSC can recognize the GSTN number, the date of generation of invoice, GSTN of supplier and recipient both, the taxable value, which is 1,18,000, number of line item is 1, HSN code, and unique number of invoice. So this is a very good feature, like this QR code. This can be readily accessed by any device or any application or any scanner of any mobile, and within a fraction of seconds we can verify whether this invoice is authentic invoice or not, which will help the government in tracking fake invoices and other things. So ये जो concept है ये बहुत ही अच्छा concept है, and it is very appreciable कि just a code से we can access the entire main details of an invoice. तो ये जो image आप देख रहे हैं, this is QR code. Okay, so coming back to my presentation, now one question arises is कि हमें e-invoicing किन किन documents पे generate करना है.
तो हमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि वी आर रिक्वायर्ड टू जनरेट QR कोड एंड IRN फॉर B2B इनवॉइस, B2G इनवॉइस. B2G means supplies made to government organizations, export invoices, reverse charge invoices, credit notes and debit notes. These are the invoices on which it will be mandatory for SSCs to generate e-invoice, और इन पे QR कोड और IRN होना कंपल्सरी होगा. इसमें एक बात हमें ध्यान में देने की बात ये है कि जो ई इनवॉइस सिस्टम है, वो जो है वो ये जो ई इनवॉइस पोर्टल है उस पे 24 आवर्स तक अवेलेबल रहेगा. उसके बाद ये डेटा एक्सटिंग्विश हो जाएगा. ये जो ई इनवॉइस सिस्टम है ये रियल टाइम बेसिस पे ऑपरेट होगा, और जितनी भी इनवॉइसेस एसएससी चाहता है, जो वैलिड इनवॉइसेस तभी मानी जाएंगी जब वो इस पोर्टल के थ्रू IRN और QR कोड इफेक्ट्स हो जाएगी. I've already discussed that notification 13/2020 has deferred the implementation of this e-invoicing concept from 1st October 2020. Although मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये जो नोटिफिकेशन है ई इनवॉइसिंग की, उसने ये बोला था कि जो ई इनवॉइसिंग है ये उन रजिस्टर्ड पर्सन्स पे एप्लीकेबल होगी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा है. However, जो ट्रायल वर्जन अवेलेबल है ई इनवॉइसिंग का, जो www.einvoice1-trial.nic.in पे है, इसमें इन्होंने 500 करोड़ से जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है उन्हीं को इनेबल किया है कि वो इस पोर्टल पे इनवॉइस का ट्रायल वर्जन देख सके. सो और इसमें मैं दो चार बातें इम्पोर्टेंट बोलनी चाहूंगी बिफोर आई प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस. कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है ई वे बिल सिस्टम पे, उनके जो आईडी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स है वो ही लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स यूज होंगे इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए. और अगर किसी एसएससी का, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरा ई वे बिल पोर्टल पे कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो फिर उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अलग से इस पोर्टल पे, और फिर मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगी अपनी ई इनवॉइसेस को IRN और QR कोड फिक्स करने के लिए. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी कि इस ट्रायल पोर्टल पे दो फीचर्स डाले गए हैं. एक तो हम ई इनवॉइस स्टेटस देख सकते हैं टैक्स पेयर का, कि क्या मैं वो टैक्स पेयर हूँ जो इस पोर्टल को एक्सेस कर सकती हूँ, और दूसरा कि क्या मैं जो मेरे पास इनवॉइस है क्या वो वेरीफाइड इनवॉइस है कि नहीं है. तो इसको समझने के लिए I'll practically show you how this portal is working. So I'll just open this e-invoice portal. I hope the screen is visible to all. Karthik, I hope it's visible. Hello. Hello. Yes, ma'am. The screen is visible, ma'am. Okay, fine. So firstly, I'll discuss e-invoice status of taxpayer. Now, if I want to know that whether I can access this portal, I just need to enter my GSTN, ki whether I'm eligible to operate this e version or not. So, for example, I enter this GSTN number 4H978. See, the message appears that yes, you are eligible. E-invoice is enabled for this taxpayer. Okay. So by this portal, we can come to know ki whether the particular GSTN is eligible to operate this trial version of generating e-invoice or not. Now, second, one more feature is there ki whether if I have received an invoice from a taxpayer and I want to verify whether it is authenticated invoice or not, I just need to upload the JSON file and it will state that whether it is validated or not. So I already have one downloaded this JSON file, and I'll just show you how it works. See, this says that this is digitally signed invoice. This verifies that yes, the invoice, the JSON file which I've uploaded is authenticated by this e-invoice portal.
So this is a new feature in this website, and it is very helpful so that the receivers can verify whether the invoices which they have received are proper authenticated or not. Because मैंने जैसे बताया कि जब से ये e-invoice mandatory हो जाएगा, तो it is very important that I should have a valid digitally signed invoice for taking input tax credit. Okay. So coming back to my presentation and moving further, now I'll be discussing the main part कि कैसे हम e-invoice portal पे ये IRN और QR code generate कर सकते हैं. So as we all know that many of the features in this trial version, it is not operational. So I'll just brief you about all the possible features which I can explain you through this webinar. Coming to my presentation, there are two methods of generating an invoice. Authenticating an invoice on the invoice portal. First is कि मैं एक एक करके भी अपनी इनवॉइस को ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ. और सेकंड ऑप्शन है कि मैं बल्क में इसको एक साथ जैसे 50-100 इनवॉइसेस भी एक साथ मैं QR कोड जनरेट कर सकती हूँ. तो अभी 1 बाय 1 जो सिस्टम है इनवॉइस पे QR कोड लगाने का, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है. तो मैं यूजर मैनुअल से स्क्रीनशॉट्स लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये ई इनवॉइस ट्रायल पोर्टल पे अपन 1 बाय 1 इनवॉइस को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. तो जब हम ई इनवॉइस ट्रायल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा हमें. मैं इसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगी. जब मैं बल्क वाला एक्सप्लेन करूंगी तब मैं ऑनलाइन आपको बताऊंगी कैसे एग्जैक्टली फंक्शन करेगा. बट क्योंकि अभी 1 बाय 1 इनवॉइस के लिए यूटिलिटी ऑपरेशनल नहीं है, तो मैं स्क्रीनशॉट से आपको फर्स्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 1 बाय 1 कैसे हम इसको कर सकते हैं. तो जब हम लॉगिन करेंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे, तो वी विल सी दीज ऑप्शंस इन द मेन्यू बार like e-invoicing, MIS reports, user management, update, and e-way bill. One important thing is that these MIS reports, user management, update, e-way bill, these are not operational till date, and only bulk generation has been made operational on this trial version. So मैं अभी bulk generation आपको practically करके बताऊंगी कैसे करते हैं. पहले हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं. तो ये जो डैशबोर्ड है उस पे आप देख सकते हैं कि इसमें पता चलेगा कि हमने कितने जनरेट कर चुके हैं और कितने कैंसिल कर चुके हैं. इन सब की डिटेल्स डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगी. मूविंग फर्दर, हाउ टू जनरेट IRN. जब हम ये ई इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा जनरेट न्यू. उस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो खुल जाएगा. I'll just zoom it so that it is clearly visible. ये जो फॉर्म है इसमें सारी इनवॉइस की डिटेल्स फिल करनी है सिंपली. जैसे कि कैटेगरी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट कैन बी B2B, B2G और एक्सपोर्ट. फिर सब कैटेगरी कि क्या हम रेगुलर टैक्स पेयर है या हम GTA है जिसकी लायबिलिटी सामने वाले पे रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए. थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो हमको ये चेक बॉक्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालनी पड़ेगी. टाइप में इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब आएंगे. देन इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा, डेट, ट्रांजैक्शन टाइप लिखना पड़ेगा. देन हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी कि जो सप्लायर उसका GSTN क्या है, एड्रेस क्या है, फोन, ईमेल आईडी, ये सब लिखना पड़ेगा. जिसमें रेड स्टार मार्क किया हुआ है वो मैंडेटरी डिटेल्स है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते. फिर बिल टू का ऑप्शन है. बिल टू में हमें जो रिसीवर है उसकी GSTN, उसके नेम, उसकी एड्रेस और अदर डिटेल्स डालनी पड़ेगी. स्टेट डालना मैंडेटरी है बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई. देन आइटम डिटेल्स हम डालेंगे, प्रोडक्ट वाइज डालेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, HSN, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, देन CGST, SGST, IGST जो भी एप्लीकेबल होगा. इस तरीके से बेसिकली जो भी इनवॉइस में हमको जो एंट्रीज डालनी पड़ती है वो हमको मैनुअली 1 बाय 1 डाल के इसको सेव करना पड़ेगा. सेव करके एक सैंपल ई इनवॉइस इन्होंने यूजर मैनुअल में डाल रखी है, वो ऐसी दिखेगी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इज QR कोड एंड ये IRN नंबर होगा 64 कैरेक्टर का लंबा सा IRN नंबर होगा. वी ऑल्सो हैव एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसके थ्रू हम इनवॉइसेस जो ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं बाद में. एक्नॉलेजमेंट डेट भी आएगी एंड ये जो इनवॉइस डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी आ जाएंगी.
दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर का एक बारकोड भी अवेलेबल होगा इस इनवॉइस पे एंड इट विल बी डिजिटली साइन। तो ये सैंपल इनवॉइस है। ये हमने डिस्कस किया कि कैसे हम वन बाय वन इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं ऑन दिस ट्रायल पोर्टल। अब हम चलते हैं कि कैसे हम बल्क में जनरेट करेंगे। वी ऑल नो कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज्यादा बड़े हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं वन बाय वन इसको मैनुअली फीड करके क्यूआर कोड जनरेट करूं। तो व्हाट विल आई डू, जैसे हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, एक टेम्पलेट है उसमें हम ऑलरेडी वो डेटा फिल कर देते हैं और जेसन क्रिएट करके हम बल्क में उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद हमको वो सारे 50-100 इनवॉइसेस का एक साथ क्यूआर कोड और आईआरएन जनरेट हो जाएगा। तो इससे टाइम सेव होगा और हमारे एफर्ट्स कम हो जाएंगे। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू जनरेट बल्क आईआरएन। ओके, तो इसका मेन स्टेप ये है कि सबसे पहले हमको एक जेसन फाइल जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें हमारी इनवॉइसेस जिसकी हमको क्यूआर कोड लगानी है उसकी डिटेल्स होंगी। फिर हमको ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा और उस क्रिएटेड जेसन फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद उस ई इनवॉइस पोर्टल से हमको आईआरएन और डिजिटली साइंड इनवॉइस और क्यूआर कोड के साथ मिल जाएगी। ये जो डिटेल प्रोसीजर है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि कैसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई जस्ट लॉग इन एंड देन आई विल शो यू। I'll just log in once again. There's some error shown. See, after logging into this trial version, हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ 3 मेन्यूज अवेलेबल है। एक ई इनवॉइस का, इसको क्लिक करने पे ये ऑप्शन आते हैं बल्क अपलोड, कैंसिल, प्रिंट। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स। इसको हम अभी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट ऑपरेशनल राइट नाउ। एंड चेंज पासवर्ड, वी कैन ऑल्सो चेंज आवर पासवर्ड। सो you can see most of the functions are not operating and it says that this option will be available at the next version. So हमारा जो कंसर्न है वो बल्क जनरेशन का है, वो हमें इस ई इनवॉइस ऑप्शन पे मिलेगा। इसमें हम बल्क अपलोड पे जाएंगे। ओके, पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ, फिर आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द हाउ टू एक्चुअली क्रिएट अ जेसन फाइल। ओके, मैंने ऑलरेडी एक जेसन फाइल क्रिएट कर रखी है, उसको मैं ब्राउज कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने जेसन चढ़ाई आप देख सकते हैं कि इसमें ये फॉलोइंग डिटेल्स कैप्चर हो रही है। मैंने 2 इनवॉइसेस डाल रखी हैं उस जेसन फाइल में। नंबर ऑफ आइटम्स इन द फाइल भी 2 हैं और वो सक्सेसफुली दोनों ही सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और मैं दोनों को देख सकती हूँ कि उन दोनों के आगे ही आईआरएन जनरेट कर दिया इन्होंने। जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया अपलोड एंड यू गेट द आईआरएन नंबर। आई कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एक्सेल फाइल जिसमें पता चल जाएगा कि किस इनवॉइस का क्या आईआरएन है। और हम डाउनलोड साइंड जेसन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस डाउनलोडेड जेसन फाइल को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये ऑथेंटिकेटेड है, क्या ये ई इनवॉइस पोर्टल से ही जनरेट की गई है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पस। एंड ये जो एक्सेल क्रिएट हुई है इससे हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी हमने इनवॉइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 103 और 104 डाली थी, तो वो दोनों ही उसके आगे आईआरएन कोड जनरेट हो चुका है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है। अब दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर वी कैन यूज इट फॉर प्रिंटिंग द इनवॉइस। आपको पता है कि जैसे हमने जेसन डाली है वो जेसन ही वापस हमको वापस दे रहा है और एक्सेल फाइल दे रहा है। नाउ इफ आई वांट टू सी द क्यूआर कोड, हाउ विल आई सी इट? तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से मैं क्यूआर कोड देख सकती हूँ। ठीक है,
I'll explain you how to see this, how to print this invoice by just logging out of this portal. The server is not working. I'll just open another another version and I'll show you. It's taking more time. Okay, by the time we can discuss about how to create a JSON file. Okay, while creating JSON file, we have following formats: format A, format B, C, and D. As of now, only form A and form B are available. Form C and form D are not available, and it will be available in the next version. इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ. फॉर्म ए जो है उसमें B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइस डिटेल्स होंगी एक ही शीट में. जैसे आई जस्ट शो यू द डाउनलोडेड एक्सेल फाइल्स आल्सो. This is the JSON form A format. Okay, I'll be explaining you simultaneously how to create a JSON. तो सबसे पहले अगर हम फॉर्म ए की बात करें तो इसमें B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल्स एक ही शीट में आती है, और फॉर्म बी में भी सेम डिटेल्स है बट वो दो सेपरेट शीट्स में आती है. तो उसमें डिफरेंस ये है कि वन शीट का मतलब ये है कि अपनी जो बेसिक डिटेल है और जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो दोनों ही एक शीट में आएगी, तो हमें फॉर्म ए चूज करना है. और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेसिक डिटेल तो एक अलग शीट में बने और जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो दूसरी शीट में बने, तो हम फॉर्म बी यूज करेंगे. अब फॉर्म बी कौन यूज करेगा? सपोज मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं बेचती हूँ. प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट. सो उस केस में आई डोंट वांट कि मेरा ये सब एक ही इनवॉइस में बहुत ही ज्यादा क्लमजी फॉर्म में आए, तो आई चूज फॉर्म बी. उसमें क्या होगा कि मेरी बेसिक डिटेल्स अलग शीट में जाएगी और जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, जो लेंदी डिटेल्स है, वो अलग शीट में जाएगी. तो इन दोनों फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है. नाउ आई विल कम टू द एक्सेल टेम्पलेट एंड एक्सप्लेन यू कि कैसे जेसन क्रिएट करनी है. सपोज हमें फॉर्म ए भरना है, तो फॉर्म ए मैंने खोल रखा है ऑलरेडी. सबसे पहले तो इसमें प्रोफाइल ऑप्शन आता है. प्रोफाइल में अगर हम जाएं तो बेसिक डिटेल जैसे मैंने बताया था ये ऑलरेडी मैंने फिल कर रखी है किसी एक पार्टी की. तो ये बेसिक डिटेल्स है. इसमें हमें ये मैंडेटरी है जो स्टार रेड स्टार से दी हुई है. तो सेलर जीएसटीएन, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये सब जो चीजें हैं ये हमें मैंडेटरी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी. देन प्रोफाइल डिटेल्स में आए तो ये क्वेश्चंस पूछता है. कुछ ये क्वेश्चंस हैं करीब 10. अब इस क्वेश्चन के आंसर पे बेस होके ये ई इनवॉइस में ये सारे कॉलम्स ओपन करेगा. जिनमें हम यस करेंगे वही कॉलम्स ओपन होंगे. अगर आप देखें तो ये बहुत लंबी शीट है एक्सेल की, और अगर सारे यस करते हैं तो ये कितनी लंबी शीट हो जाती है. तो ओनली जो रेलेवेंट डिटेल्स है हम वही यस करके और इसको कंसोलिडेटेड बना सकते हैं. तो हम वापस प्रोफाइल में जाएंगे. इसमें सबसे पहले वो पूछता है कि क्या डू यू हैव रिवर्स चार्जेस. तो अगर आपके पास अगर आपकी रिवर्सल में लाइबिलिटी है तो ही हमें यस करना है, नहीं तो नो करना है. देन डू यू हैव ई कॉमर्स जीएसटीएन. तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है जिसके बेसिस पे ही जो ई इनवॉइस के कॉलम्स है वो अपियर होंगे. जिनको हम नो करेंगे वो अपियर नहीं होंगे और जिनको यस करेंगे वो ही हमको अपियर होंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स ही रहे फिल करने के लिए. So if we look at the questions, they ask कि इसमें क्या हमारे पास बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या हमारे पास सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, क्या हम बारकोड भी लगाते हैं अपने आइटम्स पे. तो अगर हम यस करते हैं तो वो फर्दर डिटेल्स का खोलेगा. अगर हम नहीं करते तो वी विल जस्ट मेंशन नो, बिकॉज इट विल अमाउंट टू अननेसेसरी पॉपिंग अप ऑफ कॉलम्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड. फिर वो बहुत सारी चीजें पूछेगा कि क्या ई वे बिल डिटेल्स डालना चाहते हैं. इफ वी पुट यस, देन रेलेवेंट ई वे बिल डिटेल्स भी सिंक्रोनाइज हो जाएंगी एंड इट विल हेल्प अस टू जनरेट ई वे बिल बाय ऑटोमेटिकली टेकिंग सम डिटेल्स to the e-way bill portal which we are mentioning in this JSON file.
सो ये जो प्रोफाइल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमारी कम मेहनत लगे। देन जैसे जब हम GSTR1 भरते हैं और उसको जेसन में क्रिएट करके अपलोड करते हैं, वैसे ही सेम हमको इसको IRN के लिए करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर हम जाएं देखें तो इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। इसमें सप्लाई कोड टाइप है कि B2B है, B2, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं B2B, says without payment, says with payment, export with payment, export without payment, D and export, किस तरह की सप्लाईज है वो ये पूछता है। देन वी नीड टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में वो पूछता है कि भाई इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, बिकॉज इवन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट लेने के लिए भी हमको INN और QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेट, देन बायर की डिटेल्स, उसका GSTN, उसका लीगल नेम, फिर बायर्स पॉइंट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई विच इज इम्पोर्टेंट, वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर बायर्स एड्रेस। तो इस तरीके से जो बेसिक डिटेल्स है ना वो हमको इसमें इस फॉर्मेट में हमको मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि हम एक साथ नंबर ऑफ इनवॉइसेस का IRN एक साथ जनरेट कर सकें विदाउट एनी मच मैनुअल डेटा एंट्री ऑन द पोर्टल। इससे ये इजी हो जाएगा और एक साथ ही हम सारी इनवॉइसेस का QR कोड और IRN जनरेट कर पाएंगे। जब मैंने ये अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, इसमें सीरियल नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा एक ही आइटम है ग्वारगम, अगर सपोज मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, मैं ग्वारगम के साथ ग्वारगम स्प्लिट, चूरी कोरमा ये सब भी करती हूँ, तो मैं सीरियल नंबर 2, 1, 2, 3 ऐसे जो भी मेरे इनवॉइस के आइटम्स है वो मैं मेंशन करूंगी। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है और गवर्नमेंट ने ये पूरा ध्यान रखा है कि हर एक बायर की मतलब हर एक सप्लायर की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करे। इसमें सब कुछ डिटेल्स पूरी ढंग से दी हुई है और ये भी लिबर्टी दी गई है सप्लायर को कि उसके लिए जो रेलेवेंट है वो ही ऑप्शन चूज करके और इसको डिटेल्स मेंटेन करें। तो हम सभी को इस टेम्पलेट में अपने डिटेल्स में मतलब मेंटेन करनी पड़ेगी। एक बार हमने ये कर दी फिर उसके बाद हमको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट का मतलब ये है कि वो चेक करेगा कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट में इस डिटेल्स को मतलब मेंशन किया है कि नहीं किया है। वैलिडेशंस की बात करें तो आई गो टू माय प्रेजेंटेशन एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट आर द वैलिडेशंस। जैसे कि अगर हम वैलिडेशंस को डिस्कस करें तो ये बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जो अपना इनवॉइस नंबर है, वो 0 या डैश से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर अपना इनवॉइस इन सब से स्टार्ट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर आ जाएगी वैलिडेशन में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हमें जब भी इनवॉइस नंबर चूज करना है तो हमें इंश्योर करना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये हम मीट आउट करें। अगर हमारे जो इनवॉइस नंबर है उसमें अल्फाबेट्स मेंशन्ड है तो अल्फाबेट्स लोअर केसेस में नहीं हो सकते, हमें हमेशा उसको कैपिटल में ही रखना है। अगर हमने लोअर में किया तो वो वापस से वैलिडेशन एरर आ जाएगा और वो जेसन क्रिएट नहीं होगी। तो वैलिडेशंस पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इस एक्सेल शीट के बारे में और बातें बताती हूँ। फिर सप्लायर जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका जो इनवॉइस है जिसका उसको IRP जनरेट करना चाहिए वो यूनिक हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी चीज सिमिलर होगी तो वो वैलिडेशन एरर में आ जाएगी और जेसन क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हर इनवॉइस का एक यूनिक इनवॉइस नंबर देना है और वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होना चाहिए। देन एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं डुप्लीकेट INN बना सकती हूँ, मतलब अगर मेरी कोई गलती हो गई तो इसमें ये बोला गया है कि नहीं, एक डॉक्यूमेंट टाइप और एक डॉक्यूमेंट नंबर के लिए अगर एक INN ऑलरेडी जनरेट हो चुका है तो डुप्लीकेट रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होगी और वो रिजेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये है कि हम उसको INN को कैंसिल करें और एक नया INN जनरेट करें। फिर जो ई इनवॉइस INN है वो कैंसिल इनवॉइस के लिए रीजनरेट नहीं हो सकता, अपन को फ्रेश INN ही जनरेट करना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर अगर INN cannot be cancelled if valid active e-way bill exists for the same, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरा ई-वे बिल जो है वो वैलिड है जिस इनवॉइस के लिए मैं INN कैंसिल करना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे ई-वे बिल भी कैंसिल करना जरूरी है। अगर ई-वे बिल वैलिड है तो मैं INN जनरेट हुआ है उसको कैंसिल नहीं कर सकती।
फिर अनदर इम्पोर्टेंट वैलिडेशन है कि अगर जो सप्लायर है वो सेल्स यूनिट है तो वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता। फिर अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पाइलअप करके मंथ एंड में बल्क इनवॉइस जनरेट करके ये क्यूआर कोड कर सकती हूँ? तो आंसर इज बिग नो। जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी मतलब कल येस्टरडे या टुडे का हो सकता है, उससे पुराने डॉक्यूमेंट पे आईआरएन और क्यूआर कोड अफिक्स करना पॉसिबल नहीं है। देन इवन इन रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस सेलर को आईआरएन जनरेट करना कंपलसरी है। तो इससे ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि अब हम देख रहे थे कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर में मेनी ऑफ द एसएससीज दे वर नॉट जनरेटिंग रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस। Now, after implementation of this e-invoicing, it will be mandatory for everyone to generate this IRN for reverse charge invoices, और इसके लिए reverse charge invoices generate करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर इन्होंने कुछ मतलब मास्टर डेटा भी दिया है, अगर हम उसमें जाएं एक्सेल फाइल में तो वी कैन सी कि बहुत सारे यहाँ पे अगर हम देखें तो मास्टर कोड की एक फाइल है, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें के कोड्स दिए हैं, जैसे कि यूनिट के कोड्स दिए हैं, बैग है तो बैग्स है तो BAG, और बॉक्स है मतलब बॉटल्स है तो BTL। इसके साथ ही स्टेट कोड भी दिए हुए हैं, हर स्टेट के कोड दिए हुए हैं, कंट्री के कोड दिए हुए हैं, पोर्ट कोड दिए हुए हैं। तो बहुत सारी मास्टर कोड्स दिए हुए हैं जिसको हमको यूज करके जेसन क्रिएट करना है। तो इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट का है तो हमको जो रेसिपेंट जीएसटी है उस पे हमको यूआरपी मेंशन करना पड़ेगा, और जो स्टेट कोड है वो 96 डालना पड़ेगा। ये वैलिडेशन में बताया गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जेसन वैलिडली क्रिएट नहीं होगा और साथ ही अपलोड भी नहीं होगा, जिससे हमको डिफिकल्टी आएगी आईआरएन जनरेट करने में। इसके साथ ही अगर हमारा जो बायर है वो सेज है तो जो हमारा बिल टू स्टेट कोड होगा वो भी 96 मेंशन करना पड़ेगा। फिर और मिसलेनियस वैलिडेशन कोड्स ये हैं कि अगर शिपिंग पार्टी प्रोवाइड की गई है तो ट्रांजैक्शन जो है वो बिल टू शिप टू में क्लासिफाई हो जाएगा, और अगर हम डिस्पैचिंग पार्टी दे रहे हैं तो ट्रांजैक्शन बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं एंड शिप टू एड्रेस मेंशन करनी है तो वो हमको उस पोर्ट की देनी पड़ेगी जहां से कि गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो हम सभी को पता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी इनवॉइस के लिए। तो अगर गुड्स का इनवॉइस है तो जो जीएसटीएन जो सेलर जीएसटीएन का स्टेट कोड है और जो बायर जीएसटीएन का स्टेट कोड है वो डिसाइड करेगा कि जो सप्लाई है वो इंटर है या इंट्रा है, और ये ऑटोमेटिकली देखेगा। अगर आप स्टेट कोड सेलर जीएसटीएन का स्टेट कोड और बायर जीएसटीएन का स्टेट कोड डिफरेंट स्टेट्स का लिख रहे हो और इंट्रा डाल रहे हो तो वो एरर दिखा देगा जेसन में आपको। मतलब ये जो है ये इनबिल्ट वैलिडेशंस है जो कि ये ऑटोमेटिक चेक करके फिर ही जेसन क्रिएट करेगा। तो हमें ध्यान देने की बात है कि हमें जो डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल फाइल के टेम्पलेट में वो प्रॉपर हो और इन वैलिडेशंस को ध्यान में रखते हुए करें। फिर अगर सर्विसेज का केस है तो हमें पता है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट कोड है और जो सेलर का स्टेट कोड है वो डिसाइड करेगा कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर एक्सपोर्ट है तो विदाउट एनी डाउट वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। फिर हर एक आइटम में का एक वैलिड एचएसएन कोड एटलीस्ट 4 डिजिट्स का हमको मेंशन करना पड़ेगा जेसन फाइल में। और अगर हम सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो एसएससी कोड हमको देना पड़ेगा सर्विस का। अपन को क्वांटिटी और यूनिट क्वांटिटी मैंडेटरी है गुड्स के लिए देना, और अगर सर्विसेज का इनवॉइस है तो वो ऑप्शनल हो जाएगी। जो टैक्स रेट्स हैं ये जो टेम्पलेट है वो उसको भी चेक करेगा, और सिर्फ जो अलाउड टैक्स रेट्स है वो ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप टैक्स रेट 7% डालेंगे तो वो एरर दिखा देगा। मतलब जो टैक्स स्लैब्स हैं अपनी वो ही वो एक्सेप्ट करेगा, 5%, 12%, 18%, 28%, या जो भी है मतलब जो भी वैलिड टैक्स रेट्स है वो ही एक्सेप्ट होगी इस फाइल में। फिर अगर अपना जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है
तो हमको टोटल जीएसटी मेंशन करना है। जैसे कि सपोज हमारे जीएसटी प्रोडक्ट की 18% है, जिसमें सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% है। तो हमें जो जीएसटी रेट एंटर करनी है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, हमें उसको 18% कंबाइंड एंट्री ही करनी है। फिर ये बोलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हैं ईच इनवॉइस के, वो 1000 आइटम से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, तो मैं मैक्सिमम 1000 प्रोडक्ट्स तक की ही एक इनवॉइस बना पाऊंगी। ये एक लिमिटेशन इसमें इनबिल्ट है। फिर अगर हम ई वे बिल की बात करें, तो अगर हम ई वे बिल को यस करते हैं प्रोफाइल में और उसकी डिटेल्स भरते हैं, तो ही हम ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे थ्रू दिस ई इनवॉइस पोर्टल। ई वे बिल जो है वो हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और सर्विसेज के लिए जनरेट नहीं कर पाएंगे। सर्विसेज के लिए तो हम सभी को पता है कि वी कैन नॉट जनरेट एनी ई वे बिल, बट फॉर डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स ऑल्दो हमको क्यूआर कोड और आईआरएन तो करना ही है जनरेट, बट हम इस मतलब इस ई इनवॉइस पोर्टल के थ्रू ये नहीं कर पाएंगे ई वे बिल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। फिर अगर हमने आयरन को कैंसिल कर दिया, तो उसके लिए भी हम ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर अगर जो इनवॉइस है उसमें गुड्स भी बिलोंग करते हैं, तो ई वे बिल तभी जनरेट होगा कि अगर एटलीस्ट वन एचएसएन आइटम जो है वो गुड्स को बिलोंग करता है। ये भी हम सभी को पता है। फिर if only transporter ID is provided, then only part A is generated। और अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड है, तो व्हीकल नंबर और व्हीकल टाइप हमको जरूरी है मेंशन करना। अगर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो शिप, एयर, रेल है, तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और डेट मैंडेटरी है हमें इस फॉर्म में भरने के लिए। जो व्हीकल नंबर हम दे रहे हैं वो भी जो वाहन डेटाबेस है उससे वेरीफाई होगा, और अगर वो मैच नहीं करता तो हमारी जेसन क्रिएट नहीं होगी। फिर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो बायर का या सेलर का जीएसटीएन ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उसने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, चाहे हमने डिटेल्स इसमें डाली हुई हों। और वो पिन टू पिन डिस्टेंस को भी वैलिडेट करेगा। इसमें हमको पता है कि अप टू 100 किलोमीटर्स 1 डे की वैलिडिटी होती है, तो जितने किलोमीटर्स हमने मेंशन किए हैं वो वैलिडेट करके डिस्टेंस को और अकॉर्डिंगली ही जनरेट करेगा ई वे बिल। तो मैंने ये सारे वैलिडेशंस डिस्कस कर लिए। अब हम है ना अपनी एक्सेल में वापस जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया वैलिडेट हो गया। वैलिडेट क्लिक करने पे हमको प्रिपेयर जेसन करना पड़ेगा क्लिक, और इसको क्लिक करके हमारी जेसन सेव हो जाएगी हमारे फोल्डर में, जिसको हमें अपलोड करना है। अब मैं जाती हूँ वापस अपने पोर्टल पे। ये अभी भी इसमें शायद कुछ दिक्कत हो गई है। आई जस्ट लॉग इट अगेन बिकॉज आई थिंक देयर इज सम एरर इन दिस पोर्टल। आई जस्ट कैंसिल दिस ट्रांजेक्शन। I'll just try it once again, else we will proceed further. Now,
मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया था कि कैसे अपन बल्क अपलोड करते हैं, तो वो मैंने बता दिया था कि अपलोड करने पे वो डिटेल्स आ गई थी कि मैंने 2 इनवॉइसेस जनरेट की थी। अब अगर मुझे इनवॉइस जो जनरेट की है उसको प्रिंट करना है, क्योंकि क्यूआर कोड तो मुझे तो एक्सेल में सिर्फ आईआरएन नंबर मिलेगा, क्यूआर कोड के लिए मुझे इनवॉइस को प्रिंट करना पड़ेगा। तो आई जस्ट चूज दिस प्रिंट ऑप्शन, और चाहे मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर डालूं आईआरएन डालूं, मेरी इनवॉइस आ जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी इस पोर्टल पे जनरेट कर रखी थी इनवॉइस, तो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर से करती हूँ। तो यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी जनरेटेड 2 इनवॉइसेस। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये इनवॉइस आ जाएगी। So this is the e-invoice which I had generated by using this upload bulk upload option. तो ऐसे एक एक मैं, जैसे मेरे पास वो एक्सेल जनरेट हो गई थी, यू कैन डाउनलोड हो गई थी, तो उस एक्सेल में से मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर ये जो आता है इसको एंटर करूंगी तो ई इनवॉइस आ जाएगी, और अब मैं इसका प्रिंट ले सकती हूँ जिसमें क्यूआर कोड भी है। तो ये जो इनवॉइस है ये वैलिड है। इसके साथ ही मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ और इसका डाउनलोड साइन जेएसएन भी कर सकती हूँ, जो जो कि मैं अपने रिसीवर, मतलब जो रिसीवर है मेरा जिसको मैं सप्लाई कर रही हूँ उसको भेजूंगी, तो वो भी ऑथेंटिकेट कर सकता है कि हाँ मैंने प्रॉपर ई इनवॉइस पोर्टल से ही अपनी इनवॉइस जनरेट करके उसको भेजी है। तो ये डबल वेरीफाई हो जाएगा। तो ये मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि कैसे बल्क में अपन को इनवॉइस जनरेट करना है, सॉरी इनवॉइस पे आईआरएन और क्यूआर कोड जनरेट करना है और हमको प्रिंट करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि रेगुलर बेसिस पे हमको इनवॉइस का प्रिंट लेना है, सेव करके रखना है, बिकॉज जो डेटा है ये जो पोर्टल पे वो 24 आवर्स तक ही रहता है। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बल्क जनरेट कर लिया और हो गया काम। हमें जितने भी वो आईआरएन जनरेट हुए हैं उन सब का एक्नॉलेजमेंट लेके उसको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूआर कोड तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ऑप्शन करने पे ही आएगा। तो ये मैंने आपको ये अभी सिर्फ एज ऑफ नाउ बल्क अपलोड की जो फैसिलिटी है यही ट्रायल वर्जन पे आई है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कैसे इसको फंक्शनल कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर एस्पेक्ट्स पे जो कि यूजर मैनुअल में दिए गए हैं बट एज ऑफ नाउ ऑपरेशनल नहीं है। तो आई जस्ट गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन। इसमें हम कुछ मिसलेनियस फीचर्स डिस्कस करेंगे। अगर मिसलेनियस फीचर्स की बात करें तो MIS रिपोर्ट्स आता है। ऐसा होता है कि मैंने जैसे मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं हर 1 घंटे से मतलब बल्क में जनरेट कर रही हूँ IRN QR कोड्स। तो मेरे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट हो कि मैं डे एंड की बता सकूं कि मैंने कितने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं और कितने पे आईआरएन और क्यूआर कोड निकाला। तो ये एक फैसिलिटी दी गई है कि मैं ये जो टैक्स पेयर है वो जनरेट कर सकता है कि जितने भी उसने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं एक पर्टिकुलर डेट पे उसकी लिस्ट आ जाएगी एक्सेल फॉर्म में, और उसमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ इनवॉइस नंबर 1 to 50 इसने जनरेट किए हैं और उसके ये आईआरएन और क्यूआर मतलब आईआरएन नंबर है। तो ये एक अच्छा फीचर है। इससे मैं डेली अकाउंटिंग भी रख सकती हूँ कि मैंने पर्टिकुलर डेट पे कितने ई इनवॉइस का क्यूआर कोड और आईआरएन जनरेट किया। अगर हम पोर्टल पे जाएं तो ये फंक्शनलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पे मिल जाएगी हमें। इसको क्लिक करते हैं तो कुछ आता नहीं है अभी, सिर्फ जनरेटेड ई इनवॉइसेज आ रही है, बट ये फैसिलिटी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगी नेक्स्ट ट्रायल वर्जन में। फिर अगर हम देखें यूजर मैनेजमेंट, एक और फीचर है इसका यूजर मैनेजमेंट का। इसमें ये दिया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन हूँ मेरी प्रेजेंस बहुत सारे स्टेट्स में है, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक जगह से मैं अपने क्यूआर कोड या आईआरएन जनरेट नहीं करूँ, मैं थ्रू आउट इंडिया करूँ। तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन है कि ये एक फैसिलिटी देता है मुझे। ऐसी फैसिलिटी ई वे बिल में भी अपने पास है। जो टैक्स पेयर जो है वो मल्टीपल बिजनेस प्लेसेस से भी क्यू आईआरएन और क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, या अगर मैं शिफ्ट्स में वर्क करती हूँ या मेरे पास बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, तो उस केस में मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं यूजर मैनेजमेंट को यूज करके अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकती हूँ। और इस केस में मैं क्या करूंगी कि मैं मल्टीपल सब यूजर्स बना सकती हूँ और उनको डिफरेंट रोल असाइन कर सकती हूँ कि वो कैसे कैसे इनवॉइस पे आईआरएन और क्यूआर कोड जनरेट कर सकें। अभी ये फंक्शनल नहीं हुआ है बट यूजर मैनुअल में इसके बारे में दिया हुआ है। अगर हम यूजर और मैनेजमेंट सर्विसेज पे जाएंगे तो ये फॉलोइंग ऑप्शंस हमको मिलेंगे।
जिसमें हम यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। सपोज मैंने किसी को सब यूजर बनाया, बट अब मैं नहीं अब मैं चाहती हूँ कि उस सब यूजर से मेरे QR कोड जनरेट ना हो या आयरन जनरेट ना हो, तो मैं उस यूजर को फ्रीज भी कर सकती हूँ, मैं अपडेट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी तक 5 ही सब यूजर किए हैं, मैं उसको बढ़ा के 10 करना चाहती हूँ, तो मैं अपडेट सब यूजर से कर सकती हूँ, और मैं साथ ही पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ यूजर सब यूजर्स का। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज हैं फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस मल्टीपल बिजनेस प्लेसेस। तो ये फंक्शनलिटी अभी नेक्स्ट ट्रायल वर्जन में आएगी, और जैसे आएगी तो हम आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो ये आज का जो सेशन है मेरा, ये यहाँ खत्म होता है। इसमें मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया कि कैसे ई इनवॉइसिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा और कैसे ई इनवॉइस पोर्टल पे हम इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। बल्क में जनरेट करने का ऑप्शन अभी फंक्शन हो चुका है, और आप इसको ऑपरेट भी करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस सेशन में समझाया। और इनवॉइस वाइज 1 by 1 भी अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। So we can hope that this portal is updated at the earliest, so that we all can use it and we can give our suggestions to the CBIC and the government ki what are more features can be added and what features can be deleted. ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सजेशंस के बिना कोई भी चीज ऑपरेशनल नहीं हो सकती। तो दिस ट्रायल वर्जन को आप सब यूज कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज वी हैव 10 मिनट सेशन फॉर दिस। आई होप कि मैंने जो भी डेलिब्रेशन दिया उस वो आपके लिए यूजफुल रहा, और आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू प्रदीप सर for discussing the queries which we have received from our participants. Thank you. Hello. Hello. Yes, ma'am. Pradeep sir is available? Yes, ma'am. सर आपका म्यूट है, उधर से आपको म्यूट ऑफ करना है। Okay, now I am audible. यस सर। Okay, ठीक है। तो इसमें काफी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं। सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, परंतु अब जो क्वेरी सेशन है उसमें ई इनवॉइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो हमारे पास आई है। एक मिस्टर शर्मा है, उन्होंने he has asked that he is a consultant and registered on GST portal. Will he be required to register again on e-invoice portal? हाँ, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते ईवी बिल पोर्टल पे, सिर्फ जो गुड्स के होते हैं वो ईवी बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए इसको उनको वापस से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर ही है। एक ऋषभ से जो क्वेरी आई है, आई ट्राइड टू रजिस्टर्ड ऑन ईवे इनवॉइस पोर्टल बट द सिस्टम इज सेइंग दैट यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें लगता है कि आप ईवे बिल पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल है, उसको यूज करके जो ईवे बिल की लॉगिन क्रेडेंशियल है वही यूज करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मिस्टर बोरा से क्या है कि while login on the EV invoice portal message appear your account is frozen, what is reason for that? अगर जीएसटी पोर्टल पे ये ऐसा कोई मैसेज आता है योर जीएसटी अकाउंट इज फ्रोजन, तो इसका मतलब है कि आपका जीएसटी नंबर या तो इनएक्टिव है या कैंसल्ड है। However, if you are not able to log in on the GST portal, still ये मैसेज अपीयर होता है, तो वो आप लॉग इन कर सकते हैं और ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय अकाउंट इज ब्लॉक्ड, व्हाट टू डू नाउ? अगर ऐसा कोई सिस्टम में ऐसा कोई मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड और ई-इनवॉइस पोर्टल इज इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फॉर मैं, अगर आपने 5 बार से ज्यादा कोई लॉगिन या पासवर्ड यूज किया है तो आपका ये जो अकाउंट है वो टेम्परेरीली ब्लॉक्ड हो जाएगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, और आप वापस थोड़ी देर बाद उसको चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मीनल की क्वेरी है कि भाई QR कोड इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर डिलीवरी चालान प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क। डिलीवरी चालान के लिए
कोई भी ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड और IRN कोड जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इनवॉइसेस के लिए भी और रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस के लिए भी जरूरी होगा। One interesting question has been asked. 1 minute. How long will it take to generate e-invoice? Will be available on invoice portal. जैसे हमने सेमिनार में भी नीतू ने बताया कि वो 24 घंटे तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। Hence we advise that you should download it for future reference. What will happen if there is a mistake or wrong entry in e-invoice? What has to be done? If there is a mistake, incorrect or wrong entry in the e-invoice, then it is not possible to edit or correct it. Only option आपको GST पोर्टल पे जाके ही करेक्शन करना पड़ेगा, इसके बिना और कोई करेक्शन नहीं हो सकता। Whether e-invoice generated can be cancelled partially? नहीं, पार्शली कनेक्शन नहीं हो सकता। करेक्शन तो फुल्ली इनवॉइस कैंसिल हो सकता है, पार्शली कनेक्शन कैंसिल नहीं हो सकता। तो आपको पूरा ही इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, पार्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप पार्टली भी गलत होता है तो आपको पूरा कैंसिल करके नया इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। कैन वी जनरेट ई इनवॉइस थ्रू मोबाइल ऐप? हाँ, गवर्नमेंट ऐसा ला रही है, कुछ मोबाइल ऐप्स ला रही है, और इवन जो पोर्टल है अकाउंटिंग पोर्टल वो भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये सब चीजें सपोर्ट होंगी तो ऐसी फंक्शनलिटी आ सकती है जिसमें ई इनवॉइस जनरेट हो जाए थ्रू मोबाइल आल्सो। Whether e invoice to be generated for RCM ट्रांजेक्शन आल्सो, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आरसीएम के लिए भी इनवॉइस जनरेट होगा। नीतू ने सेशन में भी बताया था सेमिनार में कि भाई ई इनवॉइस जरूर करनी ही है। मतलब ये आरसीएम के लिए हम 17-18 में हमने देखा काफी सारे लोगों ने इनवॉइस जनरेट नहीं किए, परंतु अब ये कंपल्सरी होगा कि इसकी इनवॉइस जनरेट किए जाएं। Whether e-invoice is to be created for export transaction? हाँ, उसके लिए भी जरूरी है, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी जरूरत है, इसको करना है। Next question is from Madan, whether the requirement to generate e-way will be discontinued after implementation of e-invoice? No, e-way will be continued to be generated even after the introduction of e-invoice system. ये अभी भी लागू रहेगा। ये कुछ queries थी जो हमारे पास पहले ही आ गई थी। कुछ नई queries भी है। The limit of 100 crore is PAN wise or GSTN wise? It is PAN wise. If I have branches, how to decide on 100 crore? ओवरऑल टर्नओवर देखा जाएगा। एक एसएससी का ये नहीं देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर स्टेट में कितना है, पैन इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा। एनी अदर क्वेरी नीतू? सर ऑलरेडी आपने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज यू हैव ऑलरेडी हैंडल्ड। आई एम जस्ट लुकिंग कि कौन सी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस विद एपीआई एज पर गवर्नमेंट given API link asked by Kumar Revil R. So, sir, API system, although it is mentioned in this user manual, but till date it is not operational. In user manual उन्होंने बस इतना ही बोला है कि जो API होगा उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का ई इनवॉइस पोर्टल है और जो हमारी वेबसाइट है, हमारा जो ERP सॉफ्टवेयर है, वो दोनों सिंक होंगे, लिंक होंगे, और उसके बाद ये जो ई इनवॉइसिंग है उस पे IRN और डिजिटल ये QR कोड लगेगा। इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है अभी तक यूजर मैनुअल में भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, और बस इतना ही लिखा है कि इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको मीट आउट करना पड़ेगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ई इनवॉइस पोर्टल के सॉफ्टवेयर से मेल खाना चाहिए, और वो जो रिक्वायरमेंट्स है अगर फुलफिल होती है तो ही ऑटोमेटिक सिंक होगा और इससे ई इनवॉइस जनरेट होगी। So I hope I am able to resolve your query. Then Saurabh Bhandari has also asked कि RCM में जो registered है उसका भी 100 करोड़ का turnover होना चाहिए। No, RCM में तो we need to create an I mean you are asking कि RCM की जो generated invoices है उसमें QR code IRN कब हमको लगाना है, तो वो तो obvious है कि अगर हमारा 100 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है तभी हम ई इनवॉइसिंग पे जाएंगे। इसके अलावा आई कैन नॉट सी एनी क्वेरीज। आई थिंक यू हैव आंसर्ड सर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेरीज। वन मोर क्वेरी हैज बीन आस्क्ड बाय प्रिया मैम, कैन अ बिजनेस प्लेस देयर लोगो ऑन द ई इनवॉइस टेम्पलेट? तो यस, बिजनेस कैन प्लेस देयर लोगो। ये जो ई इनवॉइस आएगी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड
इस पे लोगो भी लग सकता है। आप इसको प्रिंट आउट अपने लेटरहेड पे लेंगे तो वो लोगो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन और ये जो लोगो है ये उसमें जो ई इनवॉइस जो पोर्टल पे जनरेट होगा उसमें नहीं आएगा, परंतु हाँ आप अपनी जो स्टेशनरी यूज कर रहे हैं उसमें आप हाँ, ले सकते उसमें उसमें आप ले सकते हैं। हैं। ठीक। Sir, I want to, one has asked that I want to generate e-invoice even less than 50 crore turnover. What to do? Sir, you are not allowed because मैंने starting में बताया था कि portal सिर्फ जिनका 500 करोड़ से ऊपर उन्हीं को वो allow करता है ये facility use करने की। तो अगर आपका turnover कम है तो you need not generate IRN and QR code. I think, sir, we have done with all the queries. So thank you participants. It was a very good session. Neetu has deliberately very well, and thank you Karthik for handling all the things. Thank you Mahesh as well as all the participants. और हम लोग ये वेबिनार की सीरीज ला रहे हैं, आगे भी हमारे वेबिनार आ रहे हैं। 24th को we are coming with the recent amendments and उसके बाद एक और हम वेबिनार एडवांस रूलिंग पे प्रपोज कर रहे हैं और नेक्स्ट फर्दर आ रहे हैं। So we let us utilize our time in this lockdown session. Thank you very much. Okay, thank you all. Thank you all. Thank you, every participants.